नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कौर बजाज जैन के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों इस वक्त हैं कहाँ पर? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सबको जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। प्रदीप जी, so the CGI, the CGI, His Lordship, Mr. Khanna, has been very, very critical of the centre. It appears as though, in fact, yesterday he almost passed an order. He almost passed an interim order against the Waqf Act, which I thought was very strange, because considering the fact that the new Waqf amendment has been debated in the JPC, has been debated in the Lok Sabha, has been debated in the Rajya Sabha, and has been passed into an act. Perhaps I'm not sure whether I should be saying this, but all the same, it has to be said. The Supreme Court's interventions in various such legislations and cases has been somewhat inconsistent. That's what I think. So the criticism, I remember even in the Congress rule, Manmohan Singh ji used to lash out at the courts. Because that time, that period, 2009 to 2013, saw the most judicial activism ever in history. I mean, हर चीज पे Justice Kapadia, CBI हो गया, कोल तो the courts were absolutely जो मतलब judicial activism at the highest. Now you can easily talk about it because Vice President Dhankar has talked about the judges. Now, can you encroach upon the presidential duties? Can you encroach on legislative work? Can you tell that the president has to do this within this time limit? Yes, within the time limits. How can I don't disagree with President Jagdeep Dhankar. Let me tell you very frankly, because आप देखिए, these are the three pillars of the of democracy, of democratic government. There is the legislature, there is the administration, and there is the judiciary. And of course, they say that the fourth pillar is the press, which that's a joke. It is not here nor there. That's a joke. लेकिन मेरा ये कहना है कि जजेस का काम अलग है साहब, पार्लियामेंट का काम अलग है, और जो प्रशासन है उसका काम अलग है। मेरा ये कहना है कि तीनों में एक तालमेल होना चाहिए। You can't, you're not allowed to intervene in the working of the other. And Parliament is supreme. We are a democracy, sir. We can't, like for example, अगले दिन तो ऐसा हो जाएगा अगर judicial activism इतनी आगे तक चला गया तो कोई भी कानून अगले दिन सुप्रीम कोर्ट रोक देगा। साहब रुकिए, नहीं तो आप ही कर लीजिए ना। एक जमाने में मुझे अभी तक याद है, बाला साहब ठाकरे ने कहा था ये, इट्स इन द इंटरव्यू, द सेम इंटरव्यू। Yes, you had a very fantastic interview that was. बाला साहब ठाकरे ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के, आई थिंक इट वाज बिफोर कपाडिया साहब, और वाज इट आफ्टर कपाडिया साहब? इट वाज नॉट कपाडिया, इट वाज समबडी एल्स। उनका कि साहब आप ही कर लीजिए ना सब कुछ आप ही कर लीजिए। ये क्या है? अरे भाई, पार्लियामेंट में कोई चीज पास हो गई है, एमपीज ने पास करी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास करी है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कानून गलत है। ये क्या मतलब हुआ यार? मतलब no, and in a day he talked भले वो questions जो what was underlying in everyone's mind, why non-Muslims should be a part of Waqf. Yes. Why? And other way also he questioned that how can protected monuments be a part of Waqf? Protected monuments are protected monuments. How can it be a part of Waqf? They can't be part of it. Then Waqf by user, he questioned about Waqf user. Then after that he says that no notified and registered property should not be disturbed, even if it is Waqf by user. Yes. Waqf by user. At the moment. Yes, at the moment. So 7 days time given. तो ये सब है. But now again, we come to the same thing as President Dhankar has been saying, or before him, Prime Minister Manmohan Singh was lashed out at the judiciary that should know where your border lines are. And then so did Arun Jaitley sir. Yes. Begging your pardon. He lashed out at the manner in which judges are appointed. बिल्कुल. उनका भाई साहब ये क्या है? आप खुद ही अपॉइंट कर रहे हैं, सब कुछ आप ही हैं, आप ही जज हैं, आप ही जूरी हैं, अपने केस में भी आप ही जज हैं। मतलब there have to be checks and balances. Otherwise we follow the American system. American system में प्रदीप जी, before a judge is appointed anywhere, that judge is subjected to interrogation for all his or her cases, for all his or her life, and it's a public hearing.
पता नहीं हिंदुस्तान में ऐसा कब होगा, मुझे मालूम नहीं है। But मुझे नहीं लगता Justice होगा। Khanna and Justice H.R. Khanna, जी I think when he's close to his retirement, because he's going to the next Chief Justice is Ji. from Maharashtra, Nagpur, and Justice Khanna before retiring might give a surprise to Prime Minister Modi, saying that judiciary is what the Khanna legacy is. H.R. Khanna, who totally was took on Indira Gandhi when he was next Chief Justice of India, he said, the West Prakash, I'm not bothered whether I'll be the Chief Justice of India or not, but on this I am dissenting. The dissenting judgment and the whole world that's a applauded him standard. for- Yes. So that's a standard judgment. मतलब Yes. वैसी कोई जजमेंट पास नहीं हुई सर, Yes. जस्टिस एचआर खन्ना And the जैसी whole world praised Justice H.R. Khanna. आज तक। आज तक बोले कि there will be monuments of Justice H.R. Khanna all across the country. That's right. Because he और ये मानना he पड़ेगा stood firm and took on the executive. प्रदीप जी, एक और चीज माननी पड़ेगी बिफोर वी गो टू आवर डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट। एचआर खन्ना साहब को एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सामने रखा भारतीय जनता पार्टी ने अगेंस्ट ज्ञानी जैल सिंह, अगर आपको याद होगा। Yes, yes. इन एनी इवेंट, लेट्स गो अक्रॉस टू आवर गेस्ट। वी हैव अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ गेस्ट राइट नाउ विद अस। हमारे पुराने मित्र चिंतामणि खारगने साहब, गुड टू सी हिम। चिंतामणि खारगने साहब नमस्कार। 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 जय हिंद, जय महाराष्ट्र सर, जय भवानी, जय भवानी सर, जय भवानी। शैलेश पांडे जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू सी शैलेश पांडे साहब। शैलेश पांडे साहब नमस्कार। The fighting fit Shailesh Pandey ji. जय हिंद, Always- जय महाराष्ट्र he's सर, like a- जय he's like a महाराष्ट्र। machine gun. हर हर महादेव सर, हर हर महादेव। शैलेश पांडे साहब महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम। और आवर ओल्ड फ्रेंड गोपाल तिवारी साहब। गोपाल तिवारी साहब मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन राइट नाउ। नमस्कार। नमस्कार यस सर। गोपाल तिवारी साहब, गोपाल तिवारी साहब पुणे से हैं अभी। गोपाल तिवारी साहब, लेकिन इस विषय के बारे में मेरी गोपाल तिवारी साहब से बात होती रहती है, लेकिन गोपाल तिवारी साहब आज बड़े खुश होंगे। क्यों खुश होंगे, मैं आपके सामने ये बात रखता हूं, मैं ये बात रखता हूं आपके सामने। गोपाल तिवारी साहब फिर इसमें सुधार कर दें। क्या है साहब कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की तारीख में है, मानते हैं तीसरी बार जीत के आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी जो पुराने लोग हैं वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे सर। गोपाल तिवारी जी, मैं सच बोल रहा हूं, ये पता नहीं आपके भी मित्र होंगे भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के भी, और जैसे चिंतामणि खरकने साहब है, वो भी बड़े डिस्टर्ब हो गए होंगे कि कांग्रेस सो क्यों गई है। सर, विपक्षी पार्टियों का ताकतवर होना, शक्तिशाली होना, देश के काम में सरकार का हाथ बटाना डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं बहुत खुश हूं कि कल आप लोगों ने सद्भावना यात्रा निकाली नागपुर में, हर जगह पे प्रोटेस्ट यात्रा आप लोगों ने निकाली। सोनिया जी और राहुल जी का नाम जो आया चार्जशीट में, उसके खिलाफ भले ही वी में एग्री और डिसएग्री कि वेदर दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट और नॉट, कि भाई देखिए कोर्ट में कोई चीज है तो कोर्ट से ही उसका फिर समाधान निकलेगा। लेकिन फिर भी जिस प्रकार मुंबई शहर में, आई मस्ट से दिस, शैलेश पांडे साहब सुनने वाली बात है, चिंतामणि खरकने साहब सुनने वाली बात है, आप पुणे से हैं गोपाल तिवारी साहब, यहां पर जिस प्रकार वर्षा ताई गायकवाड़ काम कर रही हैं सर, मानना पड़ेगा। मुझे पुरानी कांग्रेस की याद आ रही है इसको देख करके। इसके बावजूद कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो सामने नहीं आए, वेरी सैड। जैसे हमारे नसीम खान साहब हो गए, हमारे जनाब सुरेश शेट्टी साहब हो गए, हमारे असलम शेख साहब हो गए, अमीन पटेल साहब हो गए, कोई नहीं आया। लेकिन वर्षा ताई गायकवाड़ ने अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करी सर, मानना पड़ेगा। तो गोपाल तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अब जाग गई है? बताएं सर गोपाल तिवारी जी। सर, कांग्रेस तो पहले से जग रही है, तभी तो 10 साल का अनुभव लेके, मोदी सरकार का अनुभव लेके 11 साल सर, 11 जी बोलिए। 11 साल जी, 11 साल का। अभी देखो, अभी 2024 को जो चुनाव हुआ है वो 10 साल बोल सकते हैं हम। तो ये जनता ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत विपक्ष बनाया है। 100% डबल, जो 50 एमपी थे अभी 100 हो गए, और सत्ता पक्ष के 30% कम हो गए, हमारे 98-99% बढ़ गए। सर 101 हो गए, 101। सांगली का भी एमपी आपकी तरफ है सर, अब 101 है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 101 जो भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बोलिए सर। तो कांग्रेस तो जगी रही है। और आज का दिन जो ऐसा है कि 4
थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी ने, उन्होंने बहुत ही अच्छा एक डिसीजन दिया है, उसमें दखल अंदाजी की है, तो उसकी सराहना करनी चाहिए कि भाई न्याय व्यवस्था जग रही है। ये दो आप अभी आपका जो विश्लेषण में सुन रहा था, तो वो बातें है कि एक अच्छा जजमेंट दिया है, 7 दिन तक उन्होंने स्टे दिया है और गवर्नमेंट से कुछ बारों में क्लैरिफिकेशन स्टे नहीं दिया है सर, स्टे नहीं दिया है। सिर्फ एक चीज बोलिए सर, नहीं एक मैं क्लैरिफाई कर दूं सर आपकी कुछ मुद्दों को, 3 या 4 मुद्दों को जो मेन जरूरी थे उसको स्टे दिया है। नहीं सर, और उसके बारे में क्लैरिफाई नहीं सर, मैं आपको बता देता हूं, वहां पर यह कहा गया है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं जो नोटिफाइड और रजिस्टर्ड हैं उसमें दखलंदाजी ना हो, यह कहा गया है वेरी फ्रैंकली। देखो उसके बारे में आज ऑफिशियली कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो बताई ये बात, तो वो जो भी है क्लियर है। अभी आप उसका विश्लेषण क्या करें वो इट इज अप टू यू ओनली। तो लेकिन जहां तक कोर्ट का सवाल है, जो 3-4 मुद्दे हैं उनको स्थगित स्टे दिया है कि जो कानून के पहले की, जो कानून लाने के पहले की जो स्थिति रहेगी वही कायम रहेगी, ऐसा क्लियर किया उन्होंने। गोपाल जी, डू यू थिंक दैट देयर इज अ विच हंट? कांग्रेस के खिलाफ एक विच हंट सरकार के प्रति चालू है, जो लगातार नेशनल हेराल्ड वाले मैटर में, सोनिया गांधी जी के मैटर में, राहुल गांधी जी के मैटर में चार्जशीट करना, वो जैसे ही वो खत्म होता है नेशनल हेराल्ड, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तो शुरू हो गया रॉबर्ट वाड्रा को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में बुलाओ, उनके खिलाफ तरह तरह के। तो डू यू थिंक दिस अ पॉलिटिकल विच हंट अगेंस्ट द कांग्रेस व्हिच इज अनडेमोक्रेटिक? गोपाल तिवारी जी 100% इट इज पॉलिटिकल वेंडेटा सर। हम तो बार बार कह रहे हैं, कल से परसों से भी किया है ये सब, और लोग भी जानते हैं। अभी देखो देश के सामने जो सवाल है, जो अंतरराष्ट्रीय अपनी नीति है, बढ़ती महंगाई है, रुपया का अवमूल्यन, डॉलर का जो हो रहा है, ये सब बातें, और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे हैं, ये सब बातों पे सत्ता पक्ष के पास जवाब नहीं है, और ये ध्यान भटकाने के लिए कहो, क्योंकि काफी सारी ऐसा बातें हैं सर, तो उसके बारे में ये ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि सोनिया जी और राहुल जी को पिछली बार बुला के 5-5 दिन इंक्वायरी करके उसके बाद जो चार्जशीट दाखिल करने का जो 1 साल का जो टाइम लिमिट रहता है, वो 9 अप्रैल को खत्म हो रहा था। तो आखिरी दिन में उन्होंने जस्ट एक कुछ ना कुछ इनके पीछे लगा दिया जाए, और ये कारण ये सब किया। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बैंक के अकाउंट भी सीज किए, और उसका नतीजा हुआ हमारे दोगुने सीट। आप भी जानते हैं कि हमारे बैंकों के खाते बंद कर सीज किए थे पूरे। अभी भी ऐसी सर, अभी भी वो सीजर हटा नहीं है, अभी भी ऐसी। यही बात है, तो यही बात है कि ये जो एकमात्र कांग्रेस पार्टी है, और ये चाहते कि वो अगर गड़बड़ा हो जाए तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होगा, बस बिल्कुल हम जो मर्जी चाहे कानून चलाए, मर्जी चाहे और किसी पे बुलडोजर चलाए। तो ये अकेला कांग्रेस पार्टी है जो उनको टक्कर दे सकती है। आ रहा हूं सर, आपके पास आ रहा हूं, शैलेश पांडे जी आपके पास आ रहा हूं, टेंशन मत लीजिए, आ रहा हूं जी, बोलिए। गोपाल तिवारी जी, वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई गो टू शैलेश पांडे जी, देन आई विल गो टू चिंतामणि खरकरे साहब, क्योंकि उनका ओवरऑल व्यू बहुत जबरदस्त रहता है। वो हर समय एक राष्ट्रीय विचार से बोलते हैं। उद्धव ठाकरे सेना में होने के बावजूद उनका विचार जो है हमेशा राष्ट्रीय रहता है। तो उसी के बारे में मैं एक बात और बता दूं। बोलिए सर प्लीज। हाँ, देखो अभी ये कानून वक्त का जो आज कोर्ट में जो हुआ, वो बात रखी मैंने आपके सामने। अभी भी हमारे प्रधानमंत्री और राज्यसभा लोकसभा में से जो वोटिंग हुआ 282 232 जो भी डिवाइड हुआ, जो भी हुआ है वो पास हुआ है, वो राष्ट्रपति की साइड। इसके बाद भी लोगों को, देश को किस तरह गुमराह कर रहे हैं कि परसों का भाषण उनका सुनिए कि 2013 में 14 में कांग्रेस ने हड़बड़ा के संशोधन में वक्फ बोर्ड के संशोधन लाया था। अरे भाई, बार बार लोकसभा राज्यसभा में सब लोग बोल चुके हैं कि भाई उस समय राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, इन्होंने सपोर्ट किया था। आपके मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन जी पूछिए आप, और सब बातें यूनानिमसली हो गई थी
बिल पास होना, वो एक मत से होना, ये अलग बात है। ये 2-3 दिन बहस चल के इतना सारा अपोज जो वोट है, वो फिर भी आप ऐसी बातें करते, मतलब कोई शोभा नहीं देता। अगर इससे बजाय प्रधानमंत्री इतने अच्छे इंपोर्टेंट विषय में, गंभीर विषय में अगर 2 दिन पार्लियामेंट में बैठते थे तो वो ज्यादा अच्छा रहता था। उनको फिर ऐसी बातें बोलने की नौबत नहीं आती। राइट गोपाल तिवारी जी, लेट मी गो अक्रॉस टू शैलेश पांडे साहब। शैलेश पांडे साहब, 2 सवाल है। एक तो एक वक्त का सवाल है जिसके ऊपर आप जवाब देंगे ही देंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मेरे जहन में एक और सवाल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। नंबर 1, आज दाऊदी बोरा जमात की एक डेलीगेशन आई थी प्रधानमंत्री जी के पास। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा किया है, थैंक यू बोला है कि आपने ये वक्फ का नया कानून आप लेकर के आए हैं। इससे क्या होगा कि हमारे जो गरीब मुसलमान हैं, जो बेचारे पासबंदा मुसलमान हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर दोहरा दूं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए, पहले भी बोल चुका हूं और ये बात मैं सर पिछले 2 साल से बोल रहा हूं। इनफैक्ट पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, आई यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ द डेली करके एक अखबार आया करता था बॉम्बे में, जिसके ऊपर एक बुलडॉग हुआ करता था शक्ल। आई यूज्ड टू बी द एडिटर ऑफ दैट। और उसके पहले मैं दिल्ली में था, तब से मैं बोल रहा हूं कि मुसलमान जमात जो है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है अशराफ, एक है अजलाफ, एक है अजलाफ। अशराफ जो हैं वो कहते हैं कि वो तुर्कियों, अरबियों, अफगानियों, फारसियों की औलादें, ठीक है, दे आर ऑन द टॉप, जो हमारे ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं वगैरह वगैरह वगैरह, उसके सबके। उसके बाद अशराफ हैं और उसके बाद अजलाफ हैं। अजलाफ वो हैं बेचारे जो मोची, धोबी, नाई, तेली, ये सब लोग जो थे जो मुसलमान बने। सर ये दाऊदी बोहरा डेलीगेशन ने ये कहा है, जरा ध्यान से सुनिए शैलेश पांडे जी, ये कहा है मोदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहले प्रधानमंत्री हैं हिंदुस्तान के पहले, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड, जिन्होंने गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है और उसके बारे में कोई एक्शन लिया है। ये बात नंबर 1 है। नंबर 2, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, जेपीसी में पहले डिस्कशन हुआ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कशन हुआ वक्फ बोर्ड के कानून का, लंबी चली, जो भी डिस्कशन होना था हुआ। ऑपोजिशन पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारे सजेशन नहीं लिए गए वगैरह, लेकिन हुआ, जेपीसी बनाई गई। उसके बाद ये पूरा डिस्कशन लोकसभा में हुआ, राज्यसभा में हुआ, दोनों सदनों ने इसको पास किया, ठीक है सर। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला नहीं था कि इसमें कोई 2/3 मेजॉरिटी की आवश्यकता है। ये कानून 1 वोट से भी पास हो सकता था, फिर भी 284 वर्सेस 238 ऐसा हुआ, लेकिन पास हो गया। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसा आदरणीय सम्माननीय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने कहा है कि भाई कोर्ट का मामला इंटरप्रेट करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, पार्लियामेंट का मामला है कानून बनाना। अब आप उसमें भी अगर इंटरफियर करेंगे तो देश कैसे चलेगा? अब आप बोलें सर, शैलेश पांडे जी प्लीज। जी देखिए राजू जी, आप एकदम दुरुस्त कह रहे हैं और वही बात लगातार मैं भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से और अन्य चैनलों के माध्यम से हमेशा से यही कह रहा हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में जो दबे हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिन तक अभी तक न्याय नहीं मिला है, ऐसे लोगों का वो न्याय देना चाहते हैं। मुझे बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी जो 3 तलाक का बिल लाए थे, जिससे कि महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय होता था, उनको न्याय देने का काम किया, तो ये अच्छा काम किया ना। आज जो गरीब हैं, बेवा हैं, जो विधवा हैं, जो अनाथ है, अगर उनको भी उन मुसलमानों को उनका अधिकार दे रहे हैं वक्फ बोर्ड के माध्यम से, तो ये क्या गलत है? ये गलत नहीं है। देखिए देश के 80% से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, और इसीलिए इसी कड़ी में आज ये बोहरा समाज का जो डेलीगेशन है वो नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करने गया, और अनेक समाज के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन किया है। और जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं वो अपने पत्रों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे। लेकिन ये जो एनडीए अलायंस के लोग हैं ये हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हर चीज में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को भड़का रही है, उकसा रही है। अब मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे हमले हुए, 3 हिंदू की हत्या हो गई, एक ही घर के पिता पुत्र की निर्ममता से हत्या हो गई, घर में आग लगाए गए, पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाया गया,
500 परिवार वहां से विस्थापित हो गए, वो मुर्शिदाबाद छोड़ के मालदा चले गए, हिंदू पलायन करने में मजबूर हो गए, लेकिन वो हिंदुओं से मिलने नहीं गई। वो कहां जाती है? वो जाके मुसलमानों की सभा लेती है और वो उस सभा से उनको उकसाती है कि बोलते हैं यहां से तुमको क्या है, दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली जाओ, रास्ते पे उतरो। और उसके साथ ही अनेक अनेक जो एनडीए अलायंस के नेता हैं, आज वो मुसलमानों को उकसा रहे, रास्ते पे उतरवा रहे, लड़ाई करवा रहे, देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, ये एनडीए अलायंस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है और ये होना नहीं चाहिए। पांडे जी, मैं ये मानता हूं जी। पांडे जी, मगर कांग्रेस अलायंस का कहना है कि आप मुसलमान के हमदर्द कब बन गए? आप मुसलमान के हमदर्द कैसे बन सकता है? एक मुसलमान को आप टिकट नहीं देते हो, एक मुसलमान कोई मंत्री नहीं है, एक दो बचे थे शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी, उनको भी दरकिनार कर दिया। आप कैसे हमदर्द बन सकते हो? और आप कैसे ऐसे कह सकते हो कि पासमंदा का चिंता है, गरीब मुसलमान का चिंता है, जब आप मुसलमान को आप कई अपने पार्टी में स्थान नहीं दे रहे हो? पांडे जी, ये टोटल जो बोलते हैं ना ऑपोजिट साइंस है कि आप बोलते कुछ और करते कुछ और। पांडे जी देखिए प्रदीप जी, इतिहास गवाह है, इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति मुस्लिम को एक राष्ट्रपति बनाए, हमारे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है, न बदला जा सकता है। इसलिए बीजेपी ने मुस्लिम समाज के लिए कितने भले का काम किया है, ये दुनिया ने देखा है और देख रही है। और आपको हमारी नियत पे शक क्यों हो रहा है? ये शक इसलिए हो रहा है, पहले भी तो बने थे मुसलमान प्रधान प्रेसिडेंट, ऐसा मत बोलिए ना सर। नहीं, आप हमको मुस्लिम विरोधी कहते हैं, इसके बावजूद सर एक और चीज है, आप ही के पक्ष में बोल रहा हूं। इसके पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन बने प्रेसिडेंट, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद साहब बने, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम बने। और ये बात भी सोचने लायक है, कहने लायक है सर। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं बोलते, मुझे मालूम नहीं है। नहीं, मैं सर पूरी बात सुन लीजिए। अरे सर पूरी बात तो सुनो। गोपाल तिवारी जी हाथ जोड़ के, आपके सामने हाथ जोड़ के सर, प्लीज एक सेकंड। शैलेश पांडे जी की बारी है, उनको बोलने दीजिए। आप पूरा आपको पूरा वक्त आपके पास है, आपका चैनल है सर, हमारा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। तो आपने पूछा कि हम क्यों नहीं बोलते, तो सर एक सेकंड, अली अहमद पहले बने थे ना सर, डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले बने थे, फखरुद्दीन अली अहमद उनके बाद आए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद और सर हिदायतुल्लाह साहब और ना जाने कितने और लोग वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मुस्लिम वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन यह बहुत इंटरेस्टिंग चीज है गोपाल तिवारी जी और चिंतामणि खारकनिस्ट साहब, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। व्हाई इज इट? बिकॉज आई कांट से आई वाज पर्सनली इन्वॉल्व, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से, एलके अडवाणी जी से इसके ऊपर मैंने बहुत इंटरव्यूज किए उस वक्त। सर एपीजे अब्दुल कलाम जी को सेकंड टाइम नॉमिनेट फिर बीजेपी ने किया। सुन लीजिए बात, सेकंड टाइम नॉमिनेशन उनका बीजेपी ने किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रतिभा ताई पाटिल को बनाया। कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट एपीजे अब्दुल कलाम, नाइदर द फर्स्ट टाइम नॉर द सेकंड टाइम। अब आप बोलें सर, फिर शैलेश पांडे जी आप कंप्लीट करें प्लीज। एपीजे अब्दुल कलाम के सामने कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया और सर वर्षाताई पाटिल, सर प्रतिभा पाटिल सपोर्ट किया, सर प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम के सामने कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट नहीं सर प्रतिभा पाटिल, कांग्रेस उनको जो फ्री हैंड सेकंड टर्म, जो भी उन्होंने सैटेलाइट किया सेकंड टर्म उन्होंने किया था। गोपाल तिवारी जी सेकंड टर्म की बात कर रहा हूं, जब ही वांटेड अ सेकंड टर्म only BJP supported him. You had your candidate as Pratibha Tai Patil, who became the first woman president. I agree with you, but all the same, let Shailesh Pandey ji complete. जी शैलेश पांडे जी अब आप बोलें प्लीज। राजीव जी देखिए, नरेंद्र मोदी जी की नीयत साफ है और इसीलिए वो देश का विकास करने के लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका प्रयास सबका विश्वास की बात करते हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज लोगों को मिर्ची लग रही है, लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हो रहा है, लेकिन आप कितने में प्रश्न खड़ा करो, हम देश के विकास के लिए, भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए, 1947 तक भारत माता को विश्व में सबसे अधिक सुविधा संपन्न देश बनाने के लिए और विकसित भारत बनाने के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। मैं इस वक्त की देश की दशा पे ये चिंता है मुझे, क्योंकि इस वक्त जिस तरह से वक्फ बोर्ड के माध्यम से विरोध किया जा रहा है,
ये इनकी नीयत, काली नीयत दिखाई दे रही है। और वो इसलिए क्योंकि इस वक्त नेशनल हेराल्ड के केस में सोनिया गांधी, राजीव और राहुल गांधी बेल के ऊपर छूटे हुए, ये भी एक कारण है कि ये एनडी अलायंस के लोगों को उकसाकर, देश की जनता को उकसाकर देश के रोड पे लाया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही है। क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस को समझने की आवश्यकता है। आज 1937 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम जो प्रधानमंत्री, उन्होंने जो एक एजीएल कंपनी बनाई, उस कंपनी के माध्यम से उस वक्त के जो स्वतंत्र वीर थे उनपे ट्रस्टी बनाकर एक कंपनी 5,000 लोगों के साथ 5,000 स्वतंत्रता सेनानियों का, ये महत्वपूर्ण बात है। स्वतंत्र, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन लोगों को मिला के एक कंपनी बनाई। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब 90 करोड़ का लोन हो गया तो उस 90 करोड़ के लोन को माफ करने के लिए 50 लाख रुपए में उसको अलग किया और ले जाकर उसको कंपनी को बेच दिया। बताइए ये कैसे अत्याचार कर रहे हो पांडे जी? आप पे आरोप है कि आप अत्याचार कर रहे हो। आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज कर रहे हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभिषेक मनु संघवी का काम है कि आप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मिसयूज कर रहे हो। अखिलेश यादव जी ने आप पे आरोप लगा दिया कि हम सत्ता में आएंगे ईडी को बैन करेंगे। ईडी का मिसयूज, दुरुपयोग जितना आप कर रहे हो कोई नहीं करता पांडे जी। प्रदीप जी, मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूरे देश से पूछता हूं, मुझे बताइए 90 करोड़ के लोन को खत्म करने में 50 लाख रुपए में लोन खत्म होता है क्या? 50 लाख रुपए देके सर, मुझे सर असली बात बोलो ना। अरे फिर पांडे जी 2000 करोड़ की कंपनी ले लिया, उसके अंदर 5,000 करोड़ आज हुआ है। उस वक्त 2008 में ये हुआ था जो 2000 करोड़ की थी यंग इंडियन। आज यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो मालमत्ता है वो 5,000 करोड़ का है। 5,000 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है, घोटाला है। क्या इस 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पे जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे हैं ये, और ये जो हम पे आरोप लगाते हैं कि हम कर रहे, हम नहीं कर रहे। ये केस शुरू हुआ था 2013 में, तब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे और न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 2013 में उस वक्त प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। कांग्रेस के काल में भ्रष्टाचार उजागर हुआ था। असली बात पहले और केस चलता रहा और 2014 में सुप्रीम कोर्ट में गया, 2015 में, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा केस चलाना पड़ेगा। और आज जाके 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिस चार्जशीट के अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम है। देखिए बार-बार रॉबर्ट वाड्रा को आप घसीट रहे हो। रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट करना था तो पहले अरेस्ट करते पांडे जी। रोज उनको बुला के दफ्तर में बुलाओ। आज उनका बर्थडे था, बर्थडे पर भी शायद कल बर्थडे है रॉबर्ट वाड्रा का, अगर छुट्टी नहीं था तो फिर उनको बर्थडे पूरे ईडी की ऑफिस में उनका गुजारते। तो ये अत्याचार नहीं क्या पांडे जी? आप पहले अरेस्ट कर सकते थे, और इलोंगेट करते रोज बुलाना। पांडे जी कब तक चलेगा ये? प्रदीप जी, रॉबर्ट वाड्रा जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय दामाद है, और वो दामाद ने इस देश के शोषित पीड़ित किसानों की भूमियों की, करोड़ों की जमीन कौड़ी के दाम पे खरीदी और उसको अरबों खरबों में बेचने का भ्रष्टाचार किया है। आज जो हमारे किसान तो जेल में डालिए ना सर। तो बिल्कुल वो केसेस चल रहा है, इसके लिए कोई भी बचने वाला नहीं है सर। तीसरी बार 5वीं बार बुला रहे हो सर उनको, और वो भी बोल रहे हैं कि वही सवाल मुझसे बार बार अलग अलग तरीके से पूछ रहे हो। कोई नई चीज मैं क्या बताऊं इसमें? लेकिन सर मैं किसी और चीज पे आना चाह रहा हूं। गोपाल तिवारी जी, एक सेकंड में आता हूं आपके पास। चिंतामणि खारकर सामने अभी तक कुछ बोला नहीं है, मैं उनके पास जाऊं। नहीं सर अलाउ मी प्लीज। गोपाल तिवारी जी प्लीज सर। सबसे अहम बात आप भूल गए शैलेश पांडे जी, जो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हक नहीं है कि वो किसी भी एंटिटी को लोन दे दे। एआईसीसी से लोन मिला एजीएल को। सर आज क्या भारतीय जनता पार्टी किसी को लोन दे सकती है? क्या बात कर रहे हैं सर? सवाल ही नहीं उठता। ये कांग्रेस पार्टी ये क्या है? कंपनी को लोन देती है, ये तो भ्रष्टाचार सर। जो गलत है वो गलत है सर, जो गलत है वो गलत है। ये भ्रष्टाचार है और इसके पीछे जो लोग जवाबदार हैं वो जेल के सलाखों जी वो कार्रवाई होनी चाहिए। देश की जनता की मांग है सर, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं और वो कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। छोटा आदमी हो या बड़ा से बड़ा आदमी हो, भ्रष्टाचार आई एग्री विद यू, वो उसको सजा मिलनी चाहिए। आई एग्री विद यू। जो मर्जी हो, जहां पर भी हो, भले ही आईसीसी के चेयरमैन क्यों ना हो, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन अलग बात हो गई वो
राजीव जी, इन्होंने इतना बड़ा पाप किया है, देश के स्वतंत्रता सेनानियों जी। की बनाई हुई जो कंपनी थी, उनके पैसे पे ये भ्रष्टाचार किए। बताइए सर कितना पैसे बड़ा तो है पाप ही नहीं इसमें इन्वॉल्व, पैसे कितना कहाँ है बड़ा सर? पाप है। आज सर उनकी पैसे कहाँ है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व सर? 5,000 करोड़ की हो गई, 5,000 करोड़ का सर वो भ्रष्टाचार। जमीन की वैल्यू है सर, वो तो वैसे ही हो गया ना जैसे वो क्या था वो 2G स्कैम वाला, 1,73,000 करोड़। अरे तो ये जमीन बेच सर के नॉमिनल वैल्यू है। जमीन बेच के तो पैसे का भ्रष्टाचार करेंगे। सर नहीं करेंगे सर, दे वोंट बी एबल टू सेल इट, दे कांट सेल इट। पेशेंस, बाय द वे, पेशेंस। लेट मी क्लैरिफाई फॉर एवरीबॉडीज इंफॉर्मेशन। जो ट्रस्ट नया बनाया गया है यंग इंडियन का भी, सर वो AJL जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड था उससे कैरी ओवर हुआ है, और उसमें भी ये क्लॉज है कि इसको बेच नहीं सकते। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, दे कांट सेल इट, बट दैट्स अ सेपरेट इशू। लेट मी गो अक्रॉस टू चिंतामणि खारकन साहब, इतनी देर से बैठे हैं सर। इन्होंने 5,000 करोड़ की संपत्ति तो हत्या ली ना सर 5,000 करोड़ के मालिक बन गए। ऐसे बोल रही है क्या? इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ अरे तो है गोपाल कि तिवारी जी, कोई आता हूं आपके क्या बात पास। कर रहे हैं? सर दैट इज द केस। सर केस तो वही है ना, वो दोहरा रहे हैं चार्जशीट में जो है। सर शैलेश पांडे जी अपनी तरफ से तो कुछ नहीं बोल रहे ना, जो चार्जशीट में वही दोहरा रहे हैं ना। लेट मी गो टू चिंतामणि खारकन साहब। चिंतामणि खारकन साहब, सॉरी आपके पास में जरा देर में आ रहा हूं, लेकिन आपका व्यू क्या है कि बड़ा राष्ट्रीय व्यू रहता है, नेशनल व्यू रहता है, पार्टी से भी उठकर रहता है। सर कल हम लोगों ने देखा उद्धव ठाकरे जी ने नासिक में एक बहुत बड़ी सभा ली, और उसके अंदर उन्होंने ना जाने बहुत कुछ कहा, एक एक चीज बताई, बाला साहब ठाकरे के बारे में बताया, और पहली बार हम लोगों ने देखा सर, यह सुनने वाली बात है, शैलेश पांडे जी आप भी सुने, गोपाल तिवारी जी आप भी सुने, पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड बाला साहब ठाकरे वॉइस, AI जनरेटेड आवाज बाला साहब ठाकरे की, वो एकनाथ शिंदे जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में कुछ कह रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसको आप कैसे देखते हो सर? एक अपना विश्लेषण दीजिए ना चिंतामणि खारकन साहब प्लीज। देखो, ये जो AI का आवाज है जी ये ऑफिस में डिबेट वो AI का आवाज बोलेगा तो जब भी शिवसेना प्रमुख, माननीय शिवसेना प्रमुख ने मैसेज करो। जब भी कांग्रेस के बारे में, बीजेपी के बारे में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपना जो विचार है वो विचार डायस के ऊपर से प्रकट किया था, जी उसका एक समरी है। और वो समरी इसके लिए है कि लोगों की याददाश्त बहुत वीक रहती है, लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज, और सोशल मीडिया और मीडिया के हिसाब से कोई भी लीडर का एक उसको ऊंचाई तक लेके जा सकते हैं या उसको गिरा भी सकते हैं। जी बाला साहेब ठाकरे जी का विचार छोड़ा, हिंदुत्व का विचार छोड़ा, ये जो नैरेटिव सेट किया गया उसके वजह से ये करना पड़ा। इट इज ए कंपल्शन ऑन माय पार्टी। मैं इतना बोल सकता हूं कि इट इज ए कंपल्शन, नहीं तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। जो शिवसेना प्रमुख बोले हैं जी वो तो नाम बोले हैं, वो तो उसके बेडरूम में बैठ के नहीं बात किया है, खुले आम पब्लिक में बात किया है। उसका खाली एक साथ में लाके लोगों के सामने पेश करने का, उसके लिए ये बनाया है। और ये जो बनाया है उसके ऊपर मुझे मालूम है बहुत लोग क्रिटिसिज्म करेंगे। जब बाला साहेब ठाकरे थे, मौजूद थे यहाँ पे लोगों के साथ में, तभी भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत लोग करते थे। खाली ये जो प्रमोद नवलकर, अटल बिहारी वाजपेयी और ये जो बीजेपी के जो अच्छे बड़े नेता हैं, उनके वजह से बाला साहेब ठाकरे, ये जो हमारे शिवसेना प्रमुख थे, वो बीजेपी के साथ में आ गए। लेकिन उनका जो काम करने का तरीका, उनका सोचने का तरीका और बाकी लोगों का सोचने का तरीका, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। उनके पास बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, वो कभी भी इन आर्टिकुलेट अटरिंग नहीं करते। जो लोग इन आर्टिकुलेट अटरिंग करते हैं, जैसा भी अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है, ऑर्डिनरी आदमी जो सर्वसामान्य लोग हैं, उनके समझ के बाहर ये सब हंगामा चल रहा है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कोर्ट का चक्कर, इसका चक्कर, ये केस, वो केस, ईडी
कौन सही है कौन गलत है ये लोगों को नहीं समझना यही देश के लिए बहुत खराब चीज है। मैं तो समझता हूं कि शिवसेना प्रमुख जो बात करते थे, जो कॉमन आदमी था वो कॉमन आदमी को समझेगा वही वो बात करते थे, जी लोगों की बात करते थे, वो लीडर लोगों की बात नहीं करते थे। जो ऑर्डिनरी आदमी है, जो मजदूर है, जो ऑर्डिनरी कर्मचारी है, उसके मन में हर रोज कहीं ना कहीं सवाल आते हैं। वो सवाल का जवाब देने का काम शिवसेना प्रमुख करते थे और इसके लिए उनके ऊपर अभी हमारे पार्टी के ऊपर जो आरोप लगाया गया कि हमने हिंदू को छोड़ा, उसके लिए वो नैरेटिव को खारिज करने के लिए ये सब करना पड़ा। ये करना पड़ता है, हमें काकानी जरूरत नहीं है कि ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके काम करे, जरूरत नहीं है। कारखानी साहब यही आरोप है बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी का। संजय शिरसाट जी ने आप पे आरोप लगा दिया है कि उद्धव ठाकरे जी का भाषा कोई अब सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उद्धव जी ने बाला साहब के नाम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोगों तक पहुंचने का कोशिश किया। उद्धव, यू आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। कारखानी साहब, बीजेपी एंड संजय शिरसाट, एकनाथ शिंदे सेना कह रहा है कि आप मार्जिनलाइज हो गए, इसलिए बाला साहब ठाकरे जी की आवाज लेकर अब लोगों तक पहुंचना चाहते हो। उद्धव जी का भाषण या उनका जो विचार अभी भाजपा वाले नहीं सुनेंगे ना। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो पिन पॉइंट करते हैं। उन्होंने बताया है कि आपने जो इलेक्शन में जीत हासिल की है वो तुम्हारी जीत नहीं है, वो ईवीएम की वजह से जीत है। कौन मानेगा ये? क्योंकि उनको मिली है, वो कैसे मानेंगे कि ये हमारी ईवीएम की जीत है? वो तो बोलेगी हमारी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी इतनी कंफ्यूज पार्टी है और इतनी दिन ब दिन इतनी कंफ्यूज हो रही है कि क्या करने का वो नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को। हमारा हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व का कंसेप्ट पहले भी वही था, आज वही है, आगे भी वही रहेगा। हम लेकिन लोग सर आज की तारीख में उद्धव जी को कोई सुन नहीं रहा है, ये तो बताएं सर। उद्धव जी का जो करिश्मा था, मैं मानता हूं उनको 20 सीटें मिली हैं, सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उनको एनडीए में, और कांग्रेस को 16 मिली हैं, अपने एनसीपी शरद पवार जी को शायद 11 मिली हैं, जहां तक मेरे ख्याल 10 मिली हैं। उद्धव जी को 20 सीटें मिली हैं। लेकिन सर आज की तारीख में उद्धव जी को कोई सुन नहीं रहा है। ये इसके पीछे क्या है? चिंतामणि खरगने साहब वो बताइए ना। उनका जो पुरानी जो उनकी जो एक फॉलोइंग थी वो दिख नहीं रही है मुझे। ऐसा नहीं है, ये एक दबाव की राजनीति चल रही है सब जगह। एक कार्यकर्ता और नेता में यही फर्क है कि कार्यकर्ता कितना वीक है और कितना स्ट्रांग है, वो नेता के ऊपर हम बोल सकते हैं कि नेता जो रास्ते से चल रहा है उसके पीछे चलने वाले जो कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता स्ट्रांग बोले जाते हैं। अभी मुझे बताओ कि अगर कोई भी एक 15 साल, 20 साल, 30 साल पार्टी में काम किया हुआ आदमी जिसके ऊपर आरोप है, फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ी का आरोप है, और वो आरोप के वजह से डर के मारे भाजपा में चला जाएगा, तो उसमें नेता की क्या गलती है? नेता कुछ गलती किया है उसके बारे में? मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ सर, वो भी नहीं है ना आजकल, शिवसैनिक भी नहीं दिख रहे हैं ना। कर रहा हूं, कार्यकर्ता चले गए तो उनके राजू जी, पीछे इन्होंने भाजपा जो आरोप लगाया उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। मुझे मालूम है सर, मैं आता हूँ आपके, मुझे मालूम, आपने, मैंने देख लिया आपको, आपने उंगली उठाई अपनी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी जी, चिंतामणि साहब बोलिए। उनके ऊपर दबाव कितना है। अभी मैं ये लोगों का नाम नहीं लेना चाहता है क्योंकि उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जो लोगों ने पार्टी छोड़ी है उनका बार बार नाम लेने के लिए हमको ठीक नहीं लगता, क्योंकि पार्टी छोड़िए इसका मतलब हमारी विचारधारा छोड़िए। पार्टी बोलेगा तो क्या होता है? पार्टी बोलेगा तो एक विचारधारा होता है। देखो, सबको दिल्ली जाने का है, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
कोई ट्रेन से जाना चाहता है, कोई प्लेन से जाना चाहता है, कोई चल के जाना चाहता है, कोई टांगे में बैठ के जाना चाहता है। हर एक को दिल्ली जाने का रास्ता अलग अलग होता है। कोई वहां नागपुर जाता है, कोई वहां जबलपुर जाता है, दिल्ली जाने का है, लेकिन हर एक का जाने का तरीका अलग अलग होता है। और वो तरीका के लिए हमारा तरीका गलत है, हमारा तरीका सही है, इसके ऊपर ये सब राजनीति चल रही है। सत्ता संघर्ष यही सबके पीछे है। सत्ता संघर्ष, और सत्ता किसके लिए? सत्ता में जितने लोग शामिल होते हैं वो लोगों को अपने आप का भला सोचने का है। और यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर का काम चालू होता है। पॉलिटिकल लीडर का काम सिर्फ बोल देने से चालू नहीं होता है। सत्ता संघर्ष के लिए जो कार्यकर्ता काम करते हैं, अभी देखो, अभी म्युनिसिपल इलेक्शन आ गया। सर अभी कहाँ आ रहा है सर? अगले साल होगा। अभी कहाँ आ रहा है? अभी नहीं आएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी नहीं हुई है सर। कहाँ आएगा अभी? अभी तो बहुत बहुत टाइम है सर। बट एकनाथ शिंदे जी ने आरोप आप पर लगा, यूज एंड थ्रो उद्धव जी, एंड यू टर्न लेने वाले उद्धव जी, तो इसलिए सब छोड़ के जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, ये छोड़ के जा रहे हैं बोलेगा तो क्या होता है? देखो, मैं एक छत्रपति शिवाजी महाराज का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जब भी छत्रपति शिवाजी महाराज को अरेस्ट करके आगरा ले गए और उनको जेल में रखा गया जी, तभी महाराष्ट्र का पोजीशन क्या था, कंडीशन क्या था, वहां के लोग कैसे क्या क्या सोचते थे, वो आपने कभी सोचा है? महाराष्ट्र पूरा मानसिक दृष्टया, आर्थिक दृष्टया तितर बितर हो गया था। और छत्रपति शिवाजी महाराज का साम्राज्य, राज्य उनका वैनिश हो जाएगा, यही सब लोग समझते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। वहां से, आगरा से वो निकल पड़े, वापस आ गए। जितने भी थे वो सब फोर्ट उन्होंने वापस ले लिया और वापस हमारा साम्राज्य खड़ा करके वो महाराज बन गए, राज्याभिषेक। तो आपका कहने का क्या मतलब है सर कि क्या उद्धव ठाकरे जी छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह हैं? आप ये कह रहे हैं? शिवाजी महाराज की तरह नहीं। जब भी बड़ा लोगों का हम एग्जाम्पल देते हैं तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल शेयर करते हैं। Let me go to 1 second, sir. I think Shailesh Pandey साहब wants to clarify a point. After that, I'll have to go to Gopal Tiwari साहब. Shailesh Pandey जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए प्लीज। राजीव जी बोलिए सर। चिंतामणि जी अभी अपने वक्तव्य में ये कह रहे थे कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचार को हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते। मैं उनकी इन बात का पूरा खंडन करता हूं, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के विचारों को अगर कोई इसमें आत्मसात कर रहा है, उस पर चल रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना महायुति की यह सरकार है। उसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, आपने भी आरकेबी शो में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी से कई बार बात की है, मैंने देखा है। और मुझे याद है अभी भी वो इंटरव्यू जो कांग्रेस के अभी इस वक्त नेता हैं उन्होंने लिया था, एक उनके घर के अंदर वो इंटरव्यू लिया था और पूछा था बाला साहब जी से कि अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे? तो उन्होंने सीधे तौर से कहा था कि मैं सबसे पहले कश्मीर से आतंकवाद का सफाया करूंगा, कश्मीर की समस्या का समाधान करूंगा और धारा 370 वापस लूंगा और धारा 370 हटाऊंगा। और राम मंदिर बनाने की बात हमेशा करते थे, और वो 3 मंदिर, राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा की हमेशा बात करते थे। और देखिए, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने और महायुति ने सच्ची श्रद्धांजलि दी है हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को। धारा 370 नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने कश्मीर से हटाकर, यह सच्ची श्रद्धांजलि है बाला साहब ठाकरे जी के लिए। अयोध्या में 550 वर्षों के संघर्ष के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, यह सच्ची श्रद्धांजलि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के लिए। और आज उद्धव ठाकरे जी क्या कर रहे हैं? उद्धव ठाकरे जी सचिन वाजे जैसे क्रूर पुलिस अधिकारी की 100 करोड़ का भ्रष्टाचार लगता है, मनसुख हिरेन की हत्या में वो जेल में जाता है, तो उसको कहते हैं, जब उस पर आरोप लगता है तो वो क्या ओसामा बिन लादेन है? हाँ, एक भ्रष्टाचारी और हत्यारे पुलिस वाले के साथ वो कहते हैं, उसकी तुलना उसको बचाव में खड़े हो जाते हैं। और दूसरी बात, वो भ्रष्टाचार के साथ खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस जो एनडीए अलायंस पूरी हिंदुत्ववाद
के खिलाफ आज काम कर रही है। डीएमके जो कि हिंदू समाज को, समूल सनातन धर्म को नष्ट करने की बात कर रही है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, आज उनके साथ खड़ी हो गई। मुझे बताइए मुर्शिदाबाद मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की हत्या आप बोल चुके हैं सर, उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, उद्धव ठाकरे को बोलना चाहिए ना। उद्धव ठाकरे महाकुंभ दर्शन करने क्यों नहीं गए, स्नान करने क्यों नहीं गए? क्या वो हिंदू विरोधी नहीं है तो और क्या है? उनकी रैलियों में पाकिस्तानी झंडे क्यों लहराए जाते? उनकी रैलियों में बम ब्लास्ट के अपराधी उनका प्रचार क्यों कर रहे हैं? क्यों इतने नतमस्तक हो गए हैं? वो आतंकवादियों के चरण में। सर एक सवाल है शैलेश पांडे जी, विच इज अ वेरी टेक्निकल पॉइंट, एक बहुत अहम सवाल है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। इसके पहले बिफोर आई गो टू गोपाल तिवारी जी, बार बार ये सवाल आपके ऊपर उठता है, क्यों उठता है मुझे मालूम नहीं है अभी तक। सर गोपाल तिवारी जी, चिंतामणि खारगने साहब, आप दोनों भी सुन रहे जरा ध्यान से, स्पेशली गोपाल तिवारी जी, ये मेरी भी कैलकुलेशन थी लोकसभा 2024 की कि नरेंद्र मोदी जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को मिनिमम 300 मैक्सिमम 325 सीट्स आएंगी। 325 के करीब सीटें कहीं नहीं गई भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी 240 पर रुक गई। शैलेश पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर मान लीजिए ईवीएम आपके कंट्रोल में होता तो आप तो 400 पार कर लेते, पूछने वाला कौन था? तो क्यों नहीं किया आपने? 500 पार करते तो क्यों नहीं किया आपने? 600 पार कर लेते, क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों नहीं किया आपने? क्यों नहीं किया आपने? तो क्योंकि हमारे हाथ, वो हमारे हाथ में ही नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। There you go. So which is why गोपाल तिवारी जी, I am coming to you. बार बार आप लोग ईवीएम की बात करते हैं। अभी तुलसी गैबर्ट जी यहां पर आई, उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ट जी ने, कि देखिए साहब, उनका भी जिक्र किया था अभी उद्धव ठाकरे जी ने, तुलसी गैबर्ट जी का भी जिक्र किया कि देखिए वो भी कह रही हैं कि जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, दैट कैन बी हैक्ड, ऐसा उन्होंने कहा। परहैप्स शी डज नॉट रियलाइज द काइंड ऑफ ईवीएम वी आर यूजिंग हियर। यहां पर जो ईवीएम है, इट्स अ स्टैंड अलोन मशीन, उसके अंदर कोई ब्लूटूथ का या कोई पोर्ट ही नहीं है सर, तो हैक कैसे होगा वो, ये तो बताओ। नंबर एक। नंबर दो, गोपाल तिवारी जी, अगर मान लीजिए ईवीएम इनके हाथ में होता तो ये तो 350 पार कर लेते, और चलो 350 नहीं सर, छोड़िए, 275 तो ले आते। नीतीश कुमार जी और गणेश नायडू और हमारे जो नायडू साहब हैं, उनके ऊपर चंद्रबाबू नायडू, नॉट गणेश नायडू, गणेश नायडू इज अ फ्रेंड ऑफ आवर्स, हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, उनका नाम जबान पे रहता है, चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी के ऊपर तो निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब आप बोलें गोपाल तिवारी जी, प्लीज गो अहेड सर। इसके बारे में मैं 2 लाइन में बोलूंगा। ईवीएम के बारे में आप अलग से डिबेट रखिए, ताकि फिर मैं अच्छी तरह से सबूतों के साथ ओके सर, ओके फाइन, आई कंसीड। दूसरी बात आगे बोलिए सर, आपके ऊपर है, बोलिए। यू सर व्हाट कंप्लीट, यू गो ऑन सर प्लीज। हमने कहा था ईवीएम से भी ज्यादा चुनाव आयोग, इसके प्रति हमने कुछ सवाल उठाए थे। राहुल गांधी जी ने संजय राउत जी और सुप्रिया सुले जी के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, 75 लाख वोट कैसे आए, 39 लाख वोट एडिशनल कैसे हुए, उसका अभी तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। उसके बारे में कई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बस इसके बाद में जो अभी अनाप शनाप आरोप और ये बातें कही हमारे शैलेश जी ने, तो मैं कहता हूँ रॉबर्ट वाड्रा के बारे में अभी कुछ दिन पहले अपने हरियाणा, पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट में आपके जो बीजेपी के जो खच्चर साहब है, उन्होंने हाई कोर्ट में बोला था कि उनके खिलाफ कोई हमारे पास कहना नहीं है, और न्यूज भी है, मैं आपको भेजता हूँ। मालूम है सर, आई थी पहले की बात है, खबर आई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है। खच्चर साहब ने रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ हमारे पास कोई है नहीं ऐसे बोला था। इनको अभी बार और उसकी दुहाई देते नेशनल हेराल्ड की और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू की और स्वतंत्रता आजादी का संग्राम की। अरे भाई, आजादी का जो संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है, उससे आपका क्या लेना देना था? आप कहाँ थे उसके ऊपर? आपके प्रति तो ईर्ष्या है, तभी तो नेशनल हेराल्ड जैसे जो दीप स्तंभ था स्वतंत्रता आजादी का, जो उसके प्रति आप उसके बदनाम करने में तुले हुए। इससे आपकी ईर्ष्या जाहिर होती है कि आपकी आजादी के बारे में क्या राय थी, क्या भूमिका थी, आप क्या बात कर रहे हो? अरे आजादी मिली कांग्रेस ने, आजादी में कांग्रेस का योगदान है, और ये 90 करोड़ लोन था
एजीएल पे वो लोन हमने कांग्रेस पार्टी का वो दीप समता मुखपत्र था। अभी कांग्रेस जो सामना मुखपत्र है उसके प्रति बाला साहेब ठाकरे जी ने वो स्थापित किया है। उसके प्रति उद्धव जी ठाकरे अगर कोई निर्णय लेते हैं, उनके फैमिली के ट्रस्टी लेते हैं कि आप और हम उसमें दखल अंदाजी देंगे क्या? अगर वो प्रॉपर्टी बेची नहीं, ट्रांसफर हुआ नहीं, 1 रुपया भी ट्रांसफर हुए नहीं, तो पगल जैसे कुछ भी बातें पक रहे ये क्या? अरे तो फिर आखिरी दिन क्यों ये किया जब उसकी मुदत 9 अप्रैल को खत्म हो रही थी, उसकी लिमिट जब छानबीन हुई उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर उनको ये दाखिल करना था चार्जशीट, तो 9 अप्रैल को क्यों किया? मतलब इसके पास अभी कुछ न कुछ है नहीं आपके पास, तो बस दूसरे को बदनाम करो। और आजादी की जंग में तो गोपाल तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अरे 200 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने देश के नाम कर दी, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे वो नेहरू गांधी बलिदान की महान परंपराएं आप बोल ही नहीं सकते। अभी 500 करोड़ की है सर, उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते सर। 500 करोड़ तुष्टिकरण, एक मिनट सर प्लीज अरे तुष्टिकरण के बारे में मैं एक कहना चाहता हूँ। पूरा सेंटेंस तो सुनिए। सेकंड तुष्टिकरण के बाद प्रदीप जी 1 मिनट। तुष्टिकरण के बारे में अभी मैं बोलता हूँ, अगर आप गरीब मुस्लिमों को मसीहा बनने जा रहे हो, 3 तलाक मुसलमान महिलाओं के मसीहा बनने जा रहे हो, उनके जो गरीब है शोषित है, अरे भाई हमारे हिंदू में भी SC ST उनकी फिर जनगणना कीजिए ना, सेंसस कीजिए, उनको न्याय दीजिए। अरे उनको तो न्याय नहीं देते। हमारे नेता की हिंदू पत्नी को न्याय नहीं दे पा रहे आप, और प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। आपको कर्नाटका में और योगी जो कहते हैं कि 100 मुस्लिम में से 50 हिंदू रहते हैं, तो हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है। संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। 5% रिजर्वेशन आप धर्म के आधार पे किस आधार पे दे रहे हैं? संविधान का अपमान करके। सर वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा ना सर। जनगणना कीजिए ना, जनगणना क्यों नहीं कर रहे आप जनगणना क्यों नहीं कर रहे? SC ST OBC का हक छीन रहे हो आप। जनगणना क्यों कर रहे हैं? नहीं आप जनगणना कीजिए। आप क्यों दे रहे हो धर्म के आधार पे? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अरे सर गोपाल जी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि आप अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट को मुस्लिम क्यों नहीं बनाते? कांग्रेस प्रेसिडेंट को मुस्लिम बनाओ। मोदी साहब ने कहा कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट को मुस्लिम बनाओ, 50% सीट कांग्रेस में मुसलमान को दो। आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो इनका गारंटी है देश से छीन कर आप मुसलमान को देना क्यों चाहते हो? गोपाल जी, मोदी जी ने पूछा आपको। इन्होंने इन्होंने कब RSS और BJP का कोई प्रेसिडेंट बनाया क्या? RSS का कोई प्रेसिडेंट बनाया? कोई औरत बनाई? SC ST को बनाया? मुस्लिम को बनाया? क्या बात कर रहे हैं आप? आपका पूछने का आपको अधिकार ही नहीं है ये सब बातें। अगर आप पहले बनाते थे तो आपको नैतिक अधिकार है ये पूछने का। आप पूछ नहीं सकते इसको। और सेंसेक्स कीजिए, जनगणना कीजिए, अगर सही में आप में दम है कुछ तो। अगर सत्य का आधार पे चलना चाहते हो तो ये बातें कीजिए आप। सर गोपाल तिवारी जी, आपसे एक सवाल पूछ रहा था मैं। आप जो हैं चले गए उस तरफ बिल्कुल। सर सुन तो लीजिए ना, आपसे पूछ रहा हूं सर। मेरा ये कहना है कि जहां तक रॉबर्ट वाड्रा साहब का सवाल है, बाय द वे आई कैन से इट विद ग्रेट प्राइड, प्रदीप जी, इवन दो दिस इज अ फ्रिवलस कमेंट एट द मोमेंट, दिस इज नॉट अ सीरियस कमेंट। सर सर पूरी बात, अरे सर पूरी बात तो सुन लो सर। आपसे विनती है। और शैलेश पांडे जी, अगर मोदी जी का फोन हो तो बात कीजिए, या अमित शाह जी का फोन हो तो बात कीजिए, किसी और का है तो मत बात कीजिए। मैं सीधी बात बोल रहा हूं आपसे, क्योंकि ये शो जो है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं अमित शाह साहब भी देखते हैं। जरा सुनिए ध्यान से। सर, आई कैन से विद ग्रेट प्राइड दैट व्हेन आई वाज द एडिटर ऑफ द डेली, I broke the story that Priyanka Gandhi is going to be marrying a man called Robert Vadra. उसके पहले किसी को मालूम नहीं था। It was in the Daily on the front page. It was a Sunday, कलर में मैंने पब्लिश करी थी। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं गोपाल तिवारी जी, ये तो सवाल आपको पूछना चाहिए, पूछ मैं रहा हूं। और सब लोग बोलते हैं कि मैं तो संगी हूं। आपकी बात कर रहा हूं। सर आप बताइए, रॉबर्ट वाड्रा से नई चीज क्या पूछेंगे? सर वही सवाल बार बार 200 बार तो पूछ चुके हैं, उसमें क्या नई डेवलपमेंट हुई है? व्हाई आर दे कॉलिंग हिम अगेन एंड अगेन? मेरा सिर्फ इतना मानना है, कांग्रेस को तो ये बोलना चाहिए, आप बताइए अगर मैं गलत बोल रहा हूं, अगर अरेस्ट करना तो करो ना यार, क्या है? गलत काम किया, अरेस्ट करो, अंदर भेजो।
बार बार उसी चीज के ऊपर क्या इंटेरोगेशन कर रहे हैं? अब आप बताइए गोपाल तिवारी जी। सर बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, लेकिन अभी ये मानते ही नहीं है, वो बार बार उछाल रहे। तो अभी की बात है, हरियाणा हाईकोर्ट में मनोहर खट्टर जी ने बोला था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है इनके खिलाफ, फिर भी अगर वो बचपना उनका जाता नहीं है तो क्या करे? और सर ये तो सेंट्रल एजेंसी है ना। तो अभी 11 साल में तो सर वो तो अभी तक सीएम ने बोला था ना सर, मनोहर लाल खट्टर जी ने। देखो और 140 करोड़ जनता में नॉट अ सिंगल, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये केस किया था वो भी उन्होंने खुद जाके फाइल किया है आपके चैनल पे में। और वो ये बात कल जयराम रमेश जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। ये बात जब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये खुद जाके केस फाइल किया था वो। और आप मतलब आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कांग्रेस को बदनाम करना चाहते हो, और आपके पास आपका 11 साल में आप एक अच्छा काम नहीं बता पा रहे। आप अच्छा काम सर ऐसा मत बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर गोपाल भर रहे हो। कांग्रेस ने जो राष्ट्रीय संपत्ति खड़ी थी वो बेच के आप देश चला रहे हो, ऐसी तो आपकी मजबूरी है। आप क्या कर रहे हो आप? अरे गोपाल तिवारी जी क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी जी ने आर्टिकल 370 आर्टिकल 35 विड्रॉ किया, रिपील किया सर। वर्बल ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज किया। था क्या सर? एक सेकंड शैलेश पांडे जी, जरा उनकी बात सुनने दीजिए ना। हाँ क्या बोल रहे थे गोपाल तिवारी जी? वहां का देखो, आज तक कश्मीरी पंडितों को एक नहीं जाएंगे, वो नहीं होने वाला सर। आई कैन गिव यू इन राइटिंग सर, मैं लिखित में दे देता हूं आपको, कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएंगे। लेकिन कश्मीर का आज की तारीख में जो माहौल है गोपाल तिवारी जी, बड़ी विनम्रता से वीपी सिंह की थी, जब कश्मीरी पंडितों को ऊपर हमला हुआ, वो जाके वो जगमोहन के पास गए तो वो खुद बोल रहा। सर मैं आपको बता, सर अभी की बात करो ना। ऐसे तो सर कश्मीरी पंडित इज अ सेपरेट इशू। बीजेपी के गवर्नमेंट को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नपुंसक बोला है। सर कश्मीरी पंडित इज अ सेपरेट इशू। शैलेश पांडे जी जरा ध्यान से सुन ले, चिंतामणि जी आप भी जरा ध्यान से सुन ले। मैंने पूरी कश्मीर मिलिटेंसी को, अरे अंकल मेरी बात तो सुनो, कश्मीर मिलिटेंसी को और पंजाब में टेररिज्म को संत जरनैल सिंह जी भंडरावाला, जिनको मैं आज तक संत बोलता हूं, भले ही शैलेश पांडे जी मुझे गाली दें इस पे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ही वॉज माई फ्रेंड। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, पंजाब में पूरा टेररिज्म मैंने कवर किया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमृतसर में मैं था, और उसके ऊपर मैं एक चीज आपको बता दूं गोपाल तिवारी साहब, मेरी पंजाब कवरेज की वजह से मेरे खिलाफ 6 देशद्रोह के केस फाइल किए गए। किन्होंने फाइल किए? कांग्रेस ने फाइल किए। बीजेपी ने आज तक मेरे खिलाफ देशद्रोह का केस फाइल नहीं किया सर। मेरा पासपोर्ट जब्त किया गया, कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने नहीं किया, यह भी आपको बता दूं। लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड सर, टुडे द हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट हैव गॉन टू कश्मीर। सर क्या बात कर रहे हैं? सिनेमा हॉल खुल गए हैं वापस सर, 40 साल के बाद कश्मीर में। कश्मीर का जो बच्चा है, ही सीज अ साइन ऑफ होप। उसको दिख रहा है कि यार मैं आईपीएल की टीम में जा सकता हूं, मैं फुटबॉल खेल सकता हूं, मैं बॉक्सिंग चैंपियन बन सकता हूं। सर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू में खुल गया है। अगले दिन वो सर रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है ना आरईसी श्रीनगर का, वो भी खुलने वाला है। और बॉर्डर के उस तरफ एक स्कूल भी नहीं है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। सर ये मत बोलिए, एक स्कूल पूरे पाकिस्तान, एक कॉलेज नहीं है ना एक मेडिकल इंस्टीट्यूट वहां पर। सर ये मत बोलिए, इसके ऊपर जवाब देता हूं मैं। बोलिए सर, बोलिए। सर ये ओनली बिकॉज ऑफ थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लेना चाहिए और इलेक्शन लेना पड़ा। ये बीजेपी के खुद ने नहीं लिया इलेक्शन। अभी ओके जो लोगों की सरकार, सर दैट इज योर ओपिनियन, इट्स अ फ्री कंट्री सर, आजाद देश है, आपका विचार है, चिंतामणि आपका विचार है सर। शैलेश पांडे जम्मू कश्मीर में we will go to चिंतामणि घाटगेल साहब for a summing up। तो उसी के कारण हुआ है सर इट्स अ फ्री कंट्री। आज की तारीख में द हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड विल बी फंक्शनल बाय सितंबर अक्टूबर। ये भी आपको बता दूं सर यहां से ट्रेन चलेगी बॉम्बे से, यू कैन गो बाय ट्रेन राइट अप टू रियासी इन विच इज नियर द बॉर्डर। अब सर एक काम बचा है शैलेश पांडे जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बाद मैं चिंतामणि घाटगेल साहब के पास आ रहा हूं। सर एक बहुत बड़ा काम बचा है सर, बहुत बड़ा काम है जो अमित शाह साहब ने अनाउंस किया था जब आर्टिकल 370 रिपील के लिए उन्होंने बिल रखा था लोकसभा में। आपको पता नहीं वो स्पीच याद है कि नहीं है? मुझे लगता है अमित शाह साहब ने ऐसी स्पीच कभी नहीं दी है। वेरी फ्रैंकली इट इज पॉसिबली द बेस्ट स्पीच ही हैज एवर गिवन एंड द होल कंट्री सपोर्टेड हिम।
दो चीजें उन्होंने कही थी। एक चीज तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकती, उन्होंने कहा था अक्साई चेन हम वापस लेके छोड़ेंगे चाइना से। नॉट पॉसिबल सर, नहीं होने वाला वो, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। लेकिन यह भी कहा था कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो भी वापस आएगा। सर वो कब वापस आएगा ये बताइए। आपके सामने हाथ जोड़ करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, पूरा देश जानना चाहता है। असली सवाल है सर ये, बाकी सब छोड़िए, इधर की बात छोड़िए, उधर की बात छोड़िए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है, जो 1948 में हम लोगों से ले लिया गया, कब आएगा? हटाइए चीन सर, चीन का एनक्रोचमेंट कर चुका उसमें सेपरेट शो करेंगे। गोपाल तिवारी जी आई एग्री विद यू, लेने की बात की। गोपाल तिवारी जी मैं सहमत हूं आपसे, इस बात पर मैं सहमत हूं आपसे, लेकिन वहां पर बहुत बड़ी बड़ी अड़चने हैं। वी आर नॉट स्ट्रांग इनफ एज येट, लेट्स बी वेरी क्लियर। द डे वी बिकम स्ट्रांग इनफ, वहां पे सर जिस दिन हम लोग उतने ताकतवर और शक्तिशाली हो जाएंगे वो भी काम करेंगे। सर मेरा ये कहना है, जैसे पृथ्वीराज चौहान साहब, पृथ्वीराज चौहान जो हैं हमारे बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के प्रति मेरी ऑब्जेक्शन ये है कि अकल से काम करना चाहिए था। जब मोहम्मद घोरी उनकी तलवार के नीचे था, सर कलम कर देना चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। मैं मान करके चलता हूं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, प्रदीप जी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ही डिफीटेड मोहम्मद घोरी। आज पांडे जी, डीएमके के लीडर पे एफआईआर का केस रजिस्टर करने के लिए कोर्ट ने कहा, मद्रास हाई कोर्ट ने, क्या जो तुष्टीकरण की राजनीति, हिंदू धर्म को गाली देने वाले, सनातन धर्म को गाली देने वाले, क्या वो आज लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून की गिरफ्त में आ चुका है? कानून कोर्ट भी कॉग्निजेंस लेने लगे। बिकॉज इससे पहले दयानिधि जो स्टालिन जूनियर थे, उन्होंने सनातन धर्म को मलेरिया वगैरह कहा था, कुछ हुआ नहीं था। मगर आज मद्रास हाई कोर्ट ने कहा केस फाइल करो। तो किस प्रकार से देखते हो पांडे जी ये सवाल, किस प्रकार से देखते हो ये जो कब तक चलेगा? जो सनातन धर्म को गालियां देने वाले थे, क्या अभी कानून के गिरफ्त में आ गए? पांडे जी सर दोनों सवाल का जवाब देना। हाँ। ये भी और जम्मू एंड कश्मीर का भी। बोलो पांडे जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भी सर, दोनों प्लीज। पहले ये वाला सवाल का जवाब दे दीजिए, ये अभी करंट है, बोलिए सर प्लीज। जी, डीएमके के नेता पर हाईकोर्ट के द्वारा जो निर्णय आया है उन पे एफआईआर करने के लिए, उसका मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, डीएमके में उनकी सत्ता है, इसलिए वो सत्ता का दुरुपयोग करके सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल के सनातन धर्म का समूल नष्ट करने का उन्होंने दुस्साहस किया और कर रहे, और एक तरह से सनातन धर्म को वहां पर वो खत्म करने के लिए तुले हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में इस बार भगवा लहराएगी, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी, एआईडीएमके ये मिलकर, देखिएगा, मैं कहता हूं जिस तरह से सनातन धर्म, हिंदू धर्म का अपमान पर अपमान पे अपमान डीएमके ने किया है, वहां के जनता का अपमान किया है, वहां पे जो बड़ी से बड़ी नीतियां नरेंद्र मोदी जी की पूरे देश में आज फलित हो रही हैं, वहां पर वो विकास को बाधित करने का काम डीएमके ने तमिलनाडु में किया है। और तमिल संस्कृत संगमम के माध्यम से काशी में नरेंद्र मोदी जी ने अपने आस्था को, अपने विचारों को प्रदर्शित किया है कि हम किस तरह से तमिल। एक सेकंड सर, एक मिनट शैलेश पांडे जी, एक सेकंड रुकने जाऊंगा। क्या है कि गोपाल तिवारी जी बहुत डिमांड में है आजकल। गोपाल तिवारी जी को किसी वो जो अलग चैनल होता है उसमें जाना है, तो गोपाल तिवारी जी जाने के पहले आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं, आप चाहेंगे या नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो वापस हिंदुस्तान में आए? वुड यू लाइक टू सी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? क्यों नहीं चाहेंगे, लेकिन उसमें है ना, ऐसा लेकिन नहीं चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? कई देखो, ये क्राइसिस में या कोई भी परिस्थिति में ये सरकार अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेके कोई बात आज तक की आपने देखी कोई 10-11 साल में? कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस रहो, कोरोना, कुछ भी रहो, तो ये है ना, तो हम तो सपोर्ट करेंगे उसमें, हम क्यों नहीं? वंडरफुल सर, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू सर, नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड कीप अप द गुड वर्क। आपकी प्रोटेस्ट बहुत अच्छी चल रही है, आज भी हुआ, आपके एमपीसीसी के प्रेसिडेंट आज भी बॉम्बे में थे, उन्होंने यहां पर भी एक प्रोटेस्ट। गोपाल तिवारी, जब भी आपको देखते हैं हम लोग को संजय गांधी के याद क्यों आते हैं समझ में नहीं आ रहा है। आपका बहुत स्टाइल और ये जो बात करने का तरीका संजय गांधी से बहुत मिलते हैं। जी बिल्कुल। अब बस आपको एक अकबर अहमद की जरूरत है आपके राइट में, और तारिक अनवर की जरूरत है लेफ्ट में, बस। चलिए शैलेश पांडे जी आप बताएं सर, अब आप बताएं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? शैलेश, गोपाल तिवारी जी, थैंक यू सो मच। इफ यू हैव टू गो यू कैन लीव नाउ, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। जी बोलिए सर।
शैलेश पांडे देखिए राजीव जी, बोलिए सर। आप भी उसी विचारधारा से हैं जिस पर हम लोग सदैव से काम कर रहे हैं। जी मैं जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करता तो हम हमेशा एक संकल्प लेकर चलते थे कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे, और जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जी और बिल्कुल। उसी तर्ज पर देश के फौलादी गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के अप्रतिम युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर कश्मीर में जो अटल जी कहते थे कश्मीरियत जमहूरियत, आज वहां पर जमहूरियत को जिंदा करने का काम किया। आज डल लेक में पर्यटक भरे हैं। आज केसर की क्यारी में जहां खून की नदियां बहती थी, आज वहां केसर की क्यारी महक रही है। हमारे कश्यप ऋषि द्वारा बसाई भी कश्मीर में फिर से मंदिरों में एक बार घंटियां बज रही है। वहां सचिन तेंदुलकर जाकर रोड पर वहां के मुस्लिम नागरिकों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। आज वहां पर जो ताजिया नहीं उठता था, आज वो ताजिया भी उठ रहा है। और अभी अभी आपने देखा होगा रामनवमी के दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी की रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकली है। क्रांति हुआ है, परिवर्तन हुआ है, नया इतिहास लिखा है नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर के लिए। और उसी के साथ हम सभी लोगों का, देश के 140 करोड़ लोगों का हमारा सपना है। और हम तो 14 अगस्त को रात को ये नारा दुहराते हैं, अखंड भारत हो हमारा। और वो अखंड भारत जो पीओके है, पीओके के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने शपथ लिया हुआ है। और ये शपथ प्रत्येक भारतीय की है, प्रत्येक हिंदुस्तानी की है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे ये दोनों युग पुरुष, फौलादी पुरुष, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिसे वो कहते हैं, लेकिन वो हमारा अभिन्न अंग है, वो भारत माता का अंग है। हम भारत माता के मुकुट को जल्द से जल्द भारत में सम्मिलित करने का भी कार्य यह नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी करेंगे। और ये हम सभी अपने आंखों से देखेंगे, अपने आंखों से देखेंगे। कोई नहीं सोचा था धारा 370 हटेगा, क्योंकि तब ये कहते थे धारा 370 हटाया तो खून की नदियां बह जाएंगी। कश्मीर में ये महबूबा मुफ्ती कहती थी भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, तिरंगा हाथ में लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आज तिरंगा तो लहरा रहा है पूरे फख्र के साथ, लेकिन वहां पर लाल चौक पे भगवा भी लहराया प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामनवमी पे। तो जल्द ही वो हिस्सा भी चिंतामणि साहब साथ होगा, इतना मैं पूरा विश्वास दिलाता क्या हूं। बात है साहब, क्या बात है। चिंतामणि बस दिल खुश कर दिया। साहब, उद्धव ठाकरे जी ने निर्धार रैली में चिंतामणि साहब कहा कि हमारा हिंदुत्व मैं छोड़ा नहीं हूं, बट बीजेपी का हिंदुत्व हमारा हिंदुत्व नहीं है। उद्धव ठाकरे जी ने क्लियर कट कहा कि आवर हिंदुत्व, बट यू नो चिंतामणि साहब ऑन द ग्राउंड आप डीएमके के साथ खड़े हो। जैसे पांडे जी ने कहा सनातन धर्म को गाली देने वाले, ममता बनर्जी जो कुंभ महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहते हैं, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई योर हिंदुत्व अपार्ट फ्रॉम बीजेपी हिंदुत्व? चिंतामणि जी एंड डीएमके बोल दिया, कितनी गालियां देते हैं यार। चिंतामणि जी जो शिवसेना प्रमुख ने कहा था, जो प्रबोधनकार ठाकरे ने कहा था, वही लाइन पे उद्धव जी बात कर रहे हैं। ये जो इनका हिंदुत्व का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन, ये हिंदू वर्ड कहां से आया? ये हिंदू वर्ड ही हमारा नहीं है, ये हिंदू वर्ड ही हमारा नहीं है। ये ब्राह्मण समाज और वैदिक परंपरा, 140 करोड़ जनता हिंदू 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 ही बोलती है। अरे हिंदू बोलते हैं तो हिंदू बोलते हैं, सम्राट आप मानते हो कि नहीं मानते हो? नहीं, बाला साहब ठाकरे को आप हिंदू हृदय सम्राट मानते हो कि नहीं? हिंदू सर वो एकेडमिक बात कर रहे हैं। अरे शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। सुनिए पांडे जी, कुछ पांडे जी बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ज्ञान देते हैं। सर ये एकेडमिक रिसर्च है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, अप्रासंगिक है, अप्रासंगिक है। नहीं कोई बात नहीं सर, उनको बोलने दीजिए ना। नहीं है, ये हिंदू नहीं है। अरे सर उन्होंने कुछ और, वो कुछ और बोल रहे हैं सर वो कुछ और। पांडे जी 2 मिनट सुनिए ना प्लीज। आप सर आपके बहुत पुराने साथी हैं, प्लीज। नहीं, जिस बात का पूरी दुनिया ने आत्मसात कर लिया, प्रत्येक सर एक जमाना था, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, हिंदू शब्द जो है वो 4 वेदों में कहीं नहीं आता है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रिसर्च का मसला है सर। सिंधु नदी से हिंदू शब्द आया, अब वो जाने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। बोलने दो पांडे जी, वो इतिहास सभी जानते हैं, 2 मिनट सुनिए, तो सुनने दीजिए।
छोटा क्या हो बच्चा गया? भी जाता है। तो सुनिए अरे पांडे जी सुनिए ना सर पांडे जी चिंतामणि 2 मिनट सुनिए ना एक मिनट सुनिए। सर तो चिंतामणि बोलिए, खारकने कहते हैं, साहब सर चिंतामणि खारकने साहब बहुत सभ्य सांस्कृतिक और परफेक्ट जेंटलमैन है, वो किसी को इंटरप्ट नहीं करते। सर प्लीज मैं- उनका सर उनको इतनी रिस्पेक्ट दीजिए प्लीज। आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद आपको जो बोलना आप बोलिए। हाँ खारकने साहब प्लीज बोलिए प्लीज। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? जी वेद ये शब्द की उत्पत्ति विद ये शब्द से हो गई। जी विद बोलेगा तो अष्टम धातु का, जो अगर आप ग्रामर पढ़ेंगे, संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे, तो अष्टम धातु में विद इसका मतलब है मालूम होना, टू नो। विद का विद्वान बोलते हैं ना, विद्वान विद्वान जिस- विज्ञान जी बिल्कुल जिसको बहुत कुछ मालूम होता है उसको हम विद्वान बोलते हैं। जी विद्वान विद्वान, विद का मतलब है मालूम होना। क्या मालूम होना, कैसे मालूम होना? तो वेद में ये बताया है कि आप धन कैसा कमाए, आप संपत्ति कैसा कमाए, इसके बारे में वेद में बताया है। वेद में कभी भी धर्म के बारे में वो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। देयर इज नो वर्ड एज हिंदू इन वेद। इन ऑल 4 वेदास इट्स नॉट देयर। यस यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जितने भी ऋचा है, वो ऋचा में आप धनवान, संपत्तिवान, विद्वान कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया है। जी 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 वेद की उत्पत्ति, ऐसे बोलते हैं वेद अपौरुषेय है, मतलब कोई एक आदमी ने लिखा नहीं है। यही हमारी खासियत है कि कोई एक आदमी के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि ये आदमी ने वेद क्रिएट किया। बाकी धर्म और ये हमारा जो वैदिक धर्म है, जो हम वेद को मानते हैं, हम लोग वेद मानते हैं ना, बिल्कुल उस परम ऐसा है कि बाकी धर्म के धर्म ग्रंथ है, उसके निर्माता है, लेकिन वेद के निर्माता नहीं कोई है। नहीं ये हिंदू धर्म, आप जो बोलते हैं, अभी जो बात चल रही है हिंदू हिंदू हिंदू, इसके बाद हमें बहुत सोचना, गहराई से सोचना चाहिए। ये धर्म में किधर भी दूसरे का अपमान करो, दूसरे को तकलीफ दो, ये नहीं कहा है, किधर भी नहीं कहा है। दूसरे के साथ दुश्मनी करने के लिए नहीं कहा है। हमने क्या करने का, क्या करना चाहिए, उसके बारे में लिखा है। अश्वपूर्वाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियम देवी उपम वये श्रीमाम देवी जुर्षताम। हमें वेद ऐसा सिखाता है कि तुम इतना सामर्थ्यवान हो जाओ। अश्वपूर्वम, आगे अश्व है, रथ मध्यम, बीच में रथ है, हस्तिनाद प्रबोधिनी, मतलब हस्ती के गले में जो घंटा है उसका नाद सुनाई देता है आजू बाजू के लोगों को। ऐसी चतुरंग सेना जब भी तुम्हारे पास हो जाएगी, तभी तुम सामर्थ्यवान और धनवान हो जाएंगे। मतलब खुद का रक्षण करने की ताकत आप पे होनी चाहिए, और अगर वो नहीं होती तो फिर आप सामर्थ्यवान और धनवान नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये हुआ सर, चिंतामणि खारकने साहब, कहने का मतलब ये हुआ, आपको लगता नहीं है जो कुछ आपने कहा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शैलेश पांडे जी भी आपसे इसमें बिल्कुल आपका समर्थन करेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको लगता नहीं है कि हमारे स्कूल्स में वैदिक स्टडीज होनी चाहिए, चारों वेदों का ज्ञान पढ़ाना चाहिए सब बच्चों को, संस्कृत शुड बी अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, डोंट यू थिंक सर? देखो गैलीलियो, अभी देखो मैं क्रिश्चियन रोमन साम्राज्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गैलीलियो गैलीलाई जी बोलिए। गैलीलियो, उसको तो धर्मगुरु ने सामने खड़ा किया था और उसको तो मार देने की बात कर रहे थे सर कर रहे थे, करेक्ट, क्योंकि वो साइंटिफिक कोई बात बता रहा था जी। यहाँ हम लोग साइंटिफिक बात बताने के बात कोई नहीं कर रहा है, हम लोग तो पीछे जा रहे हैं। सर वेदास themselves are very scientific sir। नहीं हमारा सूर्य सिद्धांत जो है, अरे शैलेश पाटिल जी आप ही की बात कर रहा हूं, हमारा सूर्य सिद्धांत जो है वो 20,000 साल पुराना है, जिसने ये कहा कि सूर्य जो है वो सौर्य मंडल का सेंटर है। ये तो हम लोगों को 20,000 साल पहले मालूम था,
गैलीलियो गैलीलाई ने यह कहा कि सूर्य जो है वो हीलियोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ द सोलर सिस्टम जब उसने बताया तो उस वक्त के जो पोप थे उन्होंने कहा था इसको तो सूर्य पे चढ़ा दो। करेक्ट है सर, ऐसी बात नहीं है, बट वी कैन गो ऑन विद इट। अब शैलेश पांडे जी शैलेश पांडे जी आप बोले, कुछ बोल रहे थे, आप बोलिए। आज के वैज्ञानिक देखें तो हिंदू धर्म पर शोध कर रहे जी, कर और रहे हैं। हिंदू धर्म में बताए हुए सभी मानकों को वो स्वीकार कर रहे हैं और उसी आधार पे रिसर्च भी करके विज्ञान को और टेक्नोलॉजी को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारा जो पंचांग रहा, आप हमारी जो ज्योतिष पद्धति रही, नवग्रह रहा, ये कब हमने बता दिया? ये लाखों वर्षों पहले हमने बता दिया। आज पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है, सूर्य तारामंडल है, नवग्रह होते हैं, ये हमने लाखों वर्ष दुनिया को बताया। अब भारत, हिंदुस्तान, हिंदू धर्म तो दुनिया का पथ प्रदर्शक रहा है और रहेगा। आज विज्ञान में भी, चाहे वो इतिहास का विज्ञान हो, भूगोल का विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, परमाणु का विज्ञान हो, आज अणु किसने दिया, आज अंक गणित किसने दिया, जीरो किसने दिया, ये सारे वैज्ञानिक तो हिंदुस्तानी। आयुर्वेद, चरक संहिता, आर्यभट्ट, ये अर्थशास्त्र चाणक्य, ये किसकी उत्पत्ति है? ये सारे तो आपके मुताबिक क्या वेदों की पढ़ाई होनी चाहिए स्कूल में या नहीं होनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए स्कूल करिकुलम में? मैं तो इसके लिए एक आंदोलन कर रहा हूं पता नहीं कितने सालों से कि भैया संस्कृत पढ़ाओ सबको। क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? मैं आपके साथ हूं जी। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू द बोथ ऑफ यू। जी बोलिए राजीव जी बोलिए सर, बोलिए। आज एक खुशी की बात यह है। क्या है सर? आज महाराष्ट्र सरकार, महायुति सरकार ने, विशेष तौर से हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जी हिंदी भाषा को महाराष्ट्र की पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक अनिवार्य भाषा जो है वो किया है। अब महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में अब ऑप्शन नहीं, 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी का, देवा भाऊ का, महायुति सरकार का हृदय से बहुत बहुत आभार। संस्कृत को करना चाहिए था। आने वाले समय में संस्कृत हो, ये हम सबकी मांग है और हम लोग देवा भाऊ से, आप भी चलिए, मैं भी चलता हूं, देवा भाऊ से विनती करेंगे और संस्कृत को भी एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाए। लास्ट क्वेश्चन प्रदीप जी, प्लीज गो अहेड। ज्ञान की भाषा है, ज्ञान की भाषा। चिंतामणि खरकानी साहब, पांडे जी, श्लोक से हम लोग हमेशा चिंतामणि खरकानी साहब का श्लोक से एंड करते हैं। चिंतामणि खरकानी साहब, करंट पॉलिटिक्स पे एक श्लोक आप हमारे पुराण से निकालिए प्लीज, हो सके तो। देखो, मैं श्लोक बताने के पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं। जी बोलिए सर। कि हर धर्म में हम धर्म का अभ्यास नहीं करते हैं। हमने पारसी धर्म का अभ्यास नहीं किया, हमने मुस्लिम धर्म का अभ्यास नहीं किया और हमने क्रिश्चियन धर्म का अभ्यास नहीं किया और हमने दूसरे को छोटा, हम बड़े ऐसे बोलने का हमने चालू कर दिया। एक्चुअली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ज्ञान ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं मानता हूं हमारे पास वैदिक ज्ञान बहुत था, लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि हमारे राजा महाराजा स्नेक बाइट में मर गए, जो यूरोप में नहीं मरते थे। उधर मेडिसिन अवेलेबल बनाया गया क्योंकि वहां पे रिसर्च हुआ। रिसर्च बोलेगा तो पुनः खोदना, रिसर्च, सर्च करने का। रिसर्च बोलेगा तो वापस बार बार रिसर्च करने का। ये जो बार बार करने की चीज है ना, तो जो चीज हम समझते थे, मैं गालीलियो का एग्जांपल क्यों दिया, सैकड़ों साल तक लोग ऐसे समझते थे कि हमारा सूर्य जो है वो पृथ्वी के पास घूम रहा है, लेकिन वो गलत निकला। गालीलियो ने वो गलत निकाला और उन्होंने कहा कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। वो क्यों हो रहा है? रिसर्च के वजह से हो रहा है। हमारे पास मेडिसिन थे, चरक संहिता थी, सब कुछ थे, लेकिन हम चरक संहिता और मेडिसिन होने के बाद भी हमारे पास जेनर नहीं था ना, तो इसके लिए इनोकुलेशन का
हम लोग रिसर्च करके उसका फायदा नहीं उठा सके। उसके लिए हमको यूरोप और अमेरिका के ऊपर अभी डिपेंड रहना पड़ता है। यहाँ पे रिसर्च बहुत कम हो रहा है। वैदिक स्कूल जरूर खोज निकालो, लेकिन रिसर्च होना बहुत जरूरी है। जरूरी है, आई एग्री विद यू, साइंटिफिक हमारा परसेप्शन होना चाहिए हर आई चीज एग्री। में। और अगर साइंटिफिक परसेप्शन नहीं रहेगा ना, तो हम लोग और पीछे जाएंगे। आई आज एग्री विद हम यू सर। विश्व गुरु, हमारा जो पासपोर्ट का जो रैंकिंग है, वो पासपोर्ट का रैंकिंग कहाँ है जरा देखो ना। हमारा बाकी Sir, all of us have to work for it, sir. Sir, all of us have to work for it. I agree with you entirely. But we cannot forget our past. राजीव We जी, should look to the future. We should all work together and move forward. Sir, एक श्लोक से अगर हम लोग समापन करें, चिंतामणि जी, प्लीज। हम लोग साथ में चलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम लोग साथ में सब चलना लोग चाहिए। साथ में चलेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, करेक्ट है, राष्ट्र की भावना हमारे दिल में होनी चाहिए। करेक्ट। कोऑपरेटिव दम सोसाइटी संग। अभी सब जगह पे बन रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बाहर का कोई आदमी आएगा तो उसको रहने के लिए कोई देता है क्या? वो बोलेगा तुम्हारे कंपाउंड घर बना तो कोई रहने को देता है क्या? नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? कि इंटीग्रिटी के लिए हमारा खुद का क्या है, उसके लिए पहले हम लोग जो जमीन लेते हैं, घर लेते हैं, ये मेरा घर है क्यों बोलते हैं हम लोग? मेरा घर है। हम क्यों नहीं बोलते कि पूरे दुनिया का घर है, कोई भी आके इधर रहो? ऐसा नहीं बोलते हैं। वो जरूरी है, लेकिन वो कहाँ तक जरूरी है वो सोचना चाहिए। राइट सर। कहाँ जरूरी है वो सोचना चाहिए। जहां पे मैनकाइंड, मनुष्य का और समाज का नुकसान हो जाएगा, वहां तक ये चीज नहीं लेके जाना चाहिए। धर्म में अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। या इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? देयर इज नो गॉड बट मोहम्मद पैगंबर इज प्रेषित ऑफ दैट गॉड। मतलब एक ही दुनिया में ईश्वर है और मोहम्मद पैगंबर उसका प्रेषित है। हम लोग ये पढ़ाई नहीं करते, हम लोग पढ़ते नहीं, सोचते नहीं। खाली कोई नेता बोला तो उसके आपके लिए मुताबिक पढ़ाई करनी चाहिए सर, और साइंटिफिक व्यू से पढ़ाई करनी चाहिए, एक और वैज्ञानिक व्यू से करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे शिवसेना ये पढ़ाई चालू कराएगी पूरे जी महाराष्ट्र में। करेक्ट। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज हिज प्रॉफिट। दैट्स इट। राइट जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू द बोथ ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस अस एवरीवन। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर थैंक यू हर महादेव। शैलेश पांडे जी, थैंक यू सर। चिंतामणि खारकड़े साहब, थैंक यू वेरी Thank you मच। so much. थैंक यू। राजू जी, मेरा एक चीज कहना है। हाँ, बोलिए राजू जी, बोलिए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से देश की तमाम जनता से ये अनुरोध करूंगा, हमें हमारा वैदिक शिक्षा जी। अगर सही में टिकाना है, जन जन तक पहुंचाना है, तो हम जितने भी अब आज से नए मंदिर बनाएंगे, उस मंदिर के साथ एक गुरुकुल और एक व्यायामशाला अवश्य बनाना चाहिए। आई एग्री विद यू। ताकि हमारा एक हाथ में शास्त्र, दूसरे हाथ में शस्त्र, दोनों की शिक्षा प्रत्येक हिंदुस्तानी को मिले। और हमारा जो मंत्र है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। क्या बात है, क्या बात है सर। हर हर महादेव। हर थैंक यू, थैंक यू सर। ओके ओके चिंतामणि साहब, नमस्कार। नमस्कार शैलेश Thank you पांडे जी, very नमस्कार। थैंक यू सो मच। Well, that finally turned into a religious discourse, right? At the end of the day. I mean, if you got Pandey ji to hai, and Chintamani Karkhane Sahib is totally a very learned person. Yes. And ultimately, everything comes back to Vedas and Amare Puran. And the fact is, there is no disagreement. Actually Yes, speaking, yes. I don't know what the disagreement There was is all no about. disagreement. At the end of the day, there is no disagreement. Yes, disagreement. definitely. But the only thing is that I'm very, very happy about the fact that the Congress is really and truly, the Congress is protesting everywhere. आज जैसे आपने बताया, सबकाल साहब जो हैं, हर्षवर्धन सबकाल, वो यहाँ पर थे। Correct. और उन्होंने आज जो है, आज भी He led the protest. आज भी उन्होंने प्रोटेस्ट लीड करी है। कल क्या नाम है उनका सर, हमारी वर्षाताई गायकवाड़, उन्होंने लीड करी प्रोटेस्ट। उनके ऊपर पुलिस का भी एक्शन हुआ, बाकी सब कुछ भी हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हुई। दैट ऑफ कोर्स इज यस्टरडेज। दैट द लेडी इन द कैप इज आई थिंक वर्षाताई गायकवाड़। और
इसी तरीके से अगर कांग्रेस प्रोटेस्ट करती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली कांग्रेस विल रेजरेक्ट इटसेल्फ. दैट्स द वे टू गो. आई मीन इफ यू रिमेंबर, आपको याद होगा सर, जैसे आप खुद बोलते हैं जब इंदिरा जी को अरेस्ट किया गया था, Yes. पूरा देश भारत बंद हो गया था सर. Total one. And in fact, that forced them to release her immediately. इमीडिएटली चौधरी चरण सिंह ने, वो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने इंदिरा जी को अरेस्ट करा दिया था और उसके बाद दैट लेड टू हर कम बैक. इनफैक्ट एवरीबडी इन द कांग्रेस इज होपिंग कि शायद ये राहुल गांधी जी को अरेस्ट कर लेंगे. अगर राहुल गांधी जी को या सोनिया जी को आज की तारीख में अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी that the Congress might actually resurrect itself. There's a possibility. But I think the BJP is too smart for that, very frankly. They're not fools. They just call, interrogate and leave. Call, interrogate and leave. And keep calling. And keep- whenever the and keep adverse the- circumstances in the country, ऐसे कुछ एंटी मोदी कुछ वेव आ रहा है तो इमीडिएटली कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, रॉबर्ट वाड्रा. अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूं तो आपका इशारा इस तरफ है कि जिस प्रकार एंटी वक्फ प्रोटेस्ट हर जगह पर हो रही है, उसको लेकर के कांग्रेस को समझाने के लिए कि भैया जरा बैठ जाओ वरना आपके नेता जो हैं जेल में जाएंगे. कहने का मतलब ये हुआ. इज दैट व्हाट यू से? Whatever. It could be one of that. So, it could be. But only greater news against the Waqf protest is Sonia Gandhi, Rahul Gandhi called to by ED. That's right. As a result of which, what has Nobody happened else is, can talk anything other than that. except for the fact that today what the Chief Justice Rahul Khanna साहब has said. खन्ना साहब ने जो आज बोला है, that I think has taken precedence even over Rahul Gandhi and Indira Gandhi, Sonia ji's names in the charge sheet. Today, So- and they only call Robert Vadra. I mean, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi's chapter is over as on today. नहीं भाई, चार्ज शीट में एक्यूज में नाम आ गया, अब तो इंटरोगेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता. अब क्या है, अब तो पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई. Yes. Unless and until they want to file a supplementary charge sheet, then it's a separate issue. For the But, investigations. but I still can't figure this out. There are two things here, Pradeep ji, which we can talk about. We were showing some very nice footage of the MRCC, of the Mumbai protest. I don't know why. I think there are mostly BJP people in our newsroom. तो वो दिखाते नहीं है. अरे वो प्रोटेस्ट दिखाइए ना भाई. सर ये बताइए कि जहां तक के प्रोटेस्ट का सवाल है वो तो एक चीज हो गई, लेकिन can a political party give a loan to any entity? Is a political party allowed to do that? एक जमाने में बहुत कुछ हो जाता था सर. सर 90 करोड़ रुपए या 70 करोड़ रुपए आपने एजेएल या यंग इंडियन को आपने लोन दिया, किस बेसिस पे दिया? यू आर नॉट अ बैंकिंग कंपनी, यू आर नॉट अ फाइनेंस कंपनी. सर ये तो क्लियर कट वायलेशन है, वेरी फ्रैंकली. हियर आई थिंक the investigative agencies and the enforcement agencies are absolutely right. The Congress cannot give a loan to anybody. But as Abhishek Manu Singhvi, it was national interest that such a great institution like AJL was about to shut down. Somebody had to revive it, and Congress. Sir, बैंक से ले लेते लोन. Indian National Congress believed that it's their fundamental duty to revive. अरे प्रदीप जी, तो national बैंक cause. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लेते, सारे बैंक आपकी जेब में थे उस वक्त. पकड़े गए तो तकलीफ है, नहीं तो हजार बहाने. All these things. But I find this, very frankly speaking, I find this very, very strange. And for a person like Abhishek Manu Singhvi, who is a master at law, so to speak, to talk in this manner is a very strange thing, because everything else is fine. AJL में कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है. पहले प्रॉपर्टी जो थी वो 50 लाख की थी, फिर वो 100 करोड़ की हो गई, फिर वो 2000 करोड़ की हो गई, आज वो 5000 करोड़ की हो गई, जितने की भी हो गई प्रदीप जी. लेकिन फैक्ट रिमेन्स, आपने लोन कैसे दे दिया किसी को? सर, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ द बीजेपी गिविंग अ लोन टू एनीबॉडी. क्या बीजेपी बजरंग दल को लोन दे देगी? But the entire thing is Abhishek Manu Singhvi कहा कि there is nothing like this. There was nothing wrong. There's ED comes in. तो मतलब 70 करोड़ का लोन. Money move. There's a movement of cash from one end to the other. There is not even 1 inch of movement of cash from here to तो there. प्रदीप जी 70 Second करोड़ thing का is, लोन. if property moves from one end to the other, then ED comes in. Here there is no movement of property, even an inch of movement. I agree with you. As far as the No, if you ask Abhishek Manu, there's nothing wrong. as far as Nothing wrong at all. Pradeep ji, I agree totally with Abhishek Manu Singhvi sahab. I am nobody to agree or disagree with him anyway. I am not a lawyer. You are a lawyer. You can agree and disagree with him. मैं बिल्कुल उनके साथ एग्रीमेंट में हूँ. ये रॉबर्ट वाड्रा को जो बार बार हम लोग दिखा रहे हैं, बाय द वे वो अलग केस है, वो हरियाणा के लैंड का केस है. राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को चार्जशीट में मेन एक्यूज्ड बनाया गया है, वो अलहदा केस है. लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है सर, उसमें एक ही चीज जो खटक रही है वो ये है कि लोन कैसे दिया पार्टी ने. कोई पार्टी किसी को लोन कैसे दे सकती है? दैट इज समथिंग व्हिच आई फाइंड
which I think the lawyers of the Congress will find it very, very difficult to explain. और वो भी 70 करोड़ दिया और 50 लाख में उसको रफा दफा कर दिया. मतलब that's a bit much, very frankly. And the other thing also is, it begs the question. मतलब ये सवाल है सर, बहुत बहुत अहम सवाल है कि नेशनल हेरल्ड हो गई, कौमी आवाज हो गई, और एक वो जो हिंदी का इनका पेपर था, क्या था वो मुझे याद नहीं है, तीनों पेपर थे सर, तीनों पेपर का तो सत्यानाश कर दिया आपने, बंद कर दिया उनको. तो आपने क्या किया उनका? आपने सीधी सादी बात है, nobody gave a damn about those papers. उनके जो एडिटर थे, किसी भी कांग्रेसी को आप अपॉइंट करते थे, मुझे अभी तक याद है नेशनल हेरल्ड का जो ऑफिस हुआ करता था बहादुर शाह जफर बाग पे, वहां पर स्टाफ को 6-6 महीने सैलरी नहीं मिलती थी, हालत उनकी खराब थी. They were still, Pradeep ji, when the whole world had turned to digital, they were still working on an offset press. तो मतलब there are things which don't add up. Let's be very clear. एक तरफ आप बोलते हैं कि हमारा न्यूज़पेपर था, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने ये किया, तो उसको उसका ख्याल रखते ना, आगे बढ़ाते उसको. जो नेशनल इंटरेस्ट आपने फुलफिल किया, द कमिटमेंट टुवर्ड्स द कंट्री जी एंड द नेशन. But on one thing I'm very happy, at least the Congress is out. They're out on the road. सड़क पे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पुलिस से धक्का मुक्की कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है. आप जैसा हम लोग यहाँ पे बार बार बोलते हुए थकते नहीं हैं कि जब जरा सी भी गैस सिलेंडर की प्राइस बढ़ती थी, जैसे अभी बढ़ गई है, जैसे पेट्रोल और डीजल की प्राइस जो है पूरी दुनिया में कम हो गई है, हमारे यहाँ पे बिल्कुल वैसी की वैसी है. बीजेपी नाक में दम कर दिया करती थी कांग्रेस पार्टी की. आप लोग घर में बैठे रहते हैं, ट्विटर खेलते हैं, फेसबुक खेलते हैं. और कल भी प्रदीप जी, जब वर्षाताई गायकवाड़ के साथ उनकी महिलाओं की फौज साथ में थी, तब हमारे नसीम खान साहब, हमारे चरण सिंह साबरा साहब, हमारे भाई जगताप साहब, हमारे अमीन पटेल साहब, हमारे अशोक भाऊ जादव साहब, असलम शेख साहब, ये सब कहाँ थे सर? कोई नहीं दिख रहा वहां पे. नो वन. There are two ways. One is a leader should inspire unity among all factions. जी. And second thing is, every party worker should not believe in factionalism. So what is great for the party and for the nation, they should be doing it. That's so right. Both the objectives are not fulfilled yesterday. And as you have said so many times, and you have been in politics yourselves, वो जमाना गया कि लीडर के नाम पे लोग आ जाया करते थे सर. Everybody has got to be paid. अपने आप कोई नहीं आता. Exactly. आजकल कोई नहीं आता सर, सीधी सादी बात है. In any event, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. काफी बढ़िया डिस्कशन हुआ, धार्मिक डिस्कशन भी हुआ, पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुआ. And I find this today's show very strangely fulfilling. So I hope you liked it too. बिल्कुल. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. भाई वो घंटी भी बज गई, बड़ी धीमी घंटी बजी, मुझे लग रहा है सब लोग थक गए हैं बाहर, बहुत लंबा हो गया शो. अरे घंटी तो बजा दो भाई. सर, nobody's ringing the bell also. Has something gone wrong with the bell? Yes. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का घंटी बजाने के लिए. Channel of the nation. Fastest growing channel of the nation with the sleepiest PCR, right? But that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय.